یعنی اس عمر میں پہنچ جائے، بڑھاپا آ جائے اور یا پھر کوئی بیماری لاحق ہو، تو اس صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ بندہ اپنے روزوں کی صحت یاب ہونے کے بعد قضا کرے۔ کیا کرے؟ صحت یاب ہونے کے بعد قضا کرے۔ اگر قضا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے مال دیا ہے تو فدیہ دے دے۔ کیا دے؟ فدیہ دے دے ایک ایک روزے کے بدلے میں۔ مطلب شریعت میں گنجائش ہے، شریعت میں جگہ ہے، شریعت نے رعایت رکھی ہے، شریعت میں رخصت ہے کہ بندہ ان صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سخت گرمی ہے، عمر کا آخری حصہ ہے، ان گرمی کے موسم میں بریلی میں رہ کر روزہ رکھنا مشکل ہے، لیکن میرے خدا نے مجھے مال بھی عطا فرمایا ہے، دولت سے بھی نوازا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں نینی تال قریب ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ نینی تال قریب ہے، اور وہاں موسم ٹھنڈ رہتا ہے، ٹھنڈ رہتا ہے۔ میرے لیے گنجائش ہے کہ میں رمضان کا مہینہ بریلی میں نہ گزار کر نینی تال میں جا کر گزاروں۔ ہوا یہی کہ امام احمد رضا صرف اس لیے کہ روزہ چھوٹ نہ پائے بریلی سے نینی تال چلے گئے اور وہاں جا کر پورے مہینے کا روزہ رکھنے لگے۔ یہ امام احمد رضا کا تقویٰ تھا، یہ امام احمد رضا کا عمل تھا۔ امام احمد رضا کے تقوی کے حوالے سے جب بات آئی ہے تو ایک بات اور مولانا غفران صاحب آپ کے علاقائی شاعر ہیں، ماشاءاللہ ان کا جواب نہیں ہے، ان کے جلوے رکھتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ ایک بات عرض کر دوں امام احمد رضا کے تقوی کے حوالے سے، یقیناً علم میں تو آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، آپ کی کوئی نظیر نہیں تھی، اس لیے کہ علوم مصطفیٰ سے خیرات آپ نے پائی تھی، علوم مصطفیٰ کا صدقہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، عشق رسالت نے آپ کو زمانے کا سب سے بڑا عالم بنایا تھا، اور اس زمانے کے سارے حضرتوں کے درمیان آپ کو اعلیٰ حضرت کا اعزاز عطا فرمایا تھا، انعام عطا فرمایا تھا۔ لیکن تقویٰ ذرا دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا سب کچھ تھے لیکن صوفی نہیں تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صوفی کہتے کسے ہیں؟ اسے ہی نا جو شریعت کے علاوہ طریقت پر بھی عمل کرے۔ امام احمد رضا عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، صوفی بھی تھے، صافی بھی تھے، کامل بھی تھے، اکمل بھی تھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے تقوی کا یہ عالم ہے، جبکہ یہ تقوی صوفیہ کا خاصہ ہے، اور امام احمد رضا سرخیل صوفیہ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ جھینگا مچھلی آپ لوگ کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں؟ آپ کے ہاں جھینگا مچھلی کھاتے ہیں نا؟ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچا مچھلی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں امام احمد رضا سے ایک سوال ہوا کہ جھینگا مچھلی کا کھانا کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور اللہ کر بولیے یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا جھینگا مچھلی کا کھانا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب لکھنا شروع کیا۔ اب جواب میں دونوں پہلو ہے، ایک پہلو ناجائز کا ہے، ایک پہلو جائز کا ہے، لیکن ناجائز کا جو پہلو ہے وہ کمزور ہے۔ کیا ہے؟ کمزور ہے، اور جائز ہونے کا پہلو مضبوط ہے۔ اپنے علماء سے پوچھیں جو پہلو مضبوط ہوگا اسی کو آپ اپنائیں گے نا، جدھر دلائل زیادہ ہو اسی پر عمل ہوگا۔ یعنی ناجائز کے پہلو پر دلائل کم، جواب پر دلائل زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے جھینگا مچھلی کا کھانا جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن ناجائز ہونے پر بھی دلیل ہے۔ سارے دلائل لکھنے کے بعد اخیر میں امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں؟ کتنا خوبصورت جملہ ہے، امام احمد رضا کا تقویٰ دیکھو اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جواب لکھنے کے بعد ارشاد فرمایا الحمدللہ جھینگا مچھلی نہ کبھی فقیر نے کھایا نہ فقیر کے گھر والوں نے کھایا۔ کیا مطلب ہے؟ جواب پر دلیلیں زیادہ ہے، اس کے باوجود امام احمد رضا اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہیں، اجتناب کر رہے ہیں۔ اسی کو تو نعرہ تکبیر، دوسرے نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، شیخان اعلیٰ حضرت، دارالعلوم امام احمد رضا۔ یہ امام احمد رضا کا تقویٰ تھا۔ تقوی کی بات آئی ہے تو ایک بات اور سن لیں، امام احمد رضا کے خادم خاص نے کہا حضور لیمپ اس زمانے میں، آج تو لائٹ ہے نا، آج تو بجلی ہے نا، آج تو یہ کمکمے ہے نا، آج تو یہ رانائیہ ہے نا، آج یہ جمال ہے نا،
उस जमाने में सिवाय लैंप के, लालटीन के, चिराग के कुछ नहीं होता था। एक खादिम ने आकर अर्ज किया, हुजूर लैंप ले जाकर मस्जिद में रख देते हैं और जला देते हैं। उस जमाने में मस्जिद में लैंप के अलावा कुछ दूसरी चीजें जलाई जाती होगी, मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। सवाल ये नहीं है, खादिम कहते हैं लैंप ले आकर के मस्जिद में जला देता हूँ। इमाम अहमद फरमाते हैं नहीं। अब पूछा गया हुजूर क्यों नहीं? आपसे खादिम ने अर्ज किया, हुजूर मैं उसमें मिट्टी का तेल डालकर नहीं जलाऊंगा, मैं कोई दूसरा तेल डालूंगा जो पाक हो, जो साफ हो, जिसकी तबीयत में तहारत हो, निफासत हो, वो तेल डाल करके मैं मस्जिद के अंदर लैंप जलाऊंगा। इमाम अहमद फरमाते हैं अगर लैंप जलाना ही है दूसरा तेल डालकर तो खूब प्रचार करो ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि मिट्टी का तेल नहीं जला रहे हैं, कोई दूसरा तेल जला रहे हैं, या फिर सिरे से जलाओ ही मत, वरना लोगों को गलत फहमी होगी कि इमाम अहमद रज़ा की मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाया जा रहा था। का तकवा है, ये आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की तहारत है, ये एहतियात का आलम है। बहरहाल अगर आला हज़रत पर गुफ्तगू होने लगे तो एक लंबा वक्त चाहिए। मैंने जो आयत पेश की है उधर आप अपना रुख करें, आप अपनी तवज्जो मरकूज करें, अपनी फिक्र का मरकज़ व महवर उस आयत को बनाए, इसलिए कि दस्तार बंदी का जलसा है, लेकिन ज़िंदन आला हज़रत का जिक्र आ ही जाएगा। घबराहट क्या है? अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, वो बुलंद रुतबा किताब, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। क्या है? शक की कोई गुंजाइश नहीं। वो कौन सी किताब है? कुरान है। कौन सी किताब है? कुरान है। लेकिन आज हम कुरान से कितना दूर है जिसमें कोई शक नहीं है। आज बंदा या तो तीजा में कुरान खोलता है, या चाटनी के आलम में कुरान खोलता है, या चहलुम की महफिल में कुरान खोल कर पढ़ता है। मुझे तो अफसोस होता है और मुझे हया भी आती है, दुनिया में कोई भी कौम ऐसी नहीं है कि जिनके यहाँ कोई किताब पढ़ाई जाती हो, कोई सब्जेक्ट उनके यहाँ लाजमी हो, वो लोग बगैर समझे हुए उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, उस किताब को बगैर समझे हुए पढ़ते हो। लेकिन हम मुसलमान हैं, कुरान या कुरान खाने के लिए हमने नाज़िल नहीं फरमाया था, बल्कि इसका मकसद असली तो यह है कि इसे हम पढ़े भी, समझे, इससे दर्स इबरत भी हासिल करें, फहम इदराक के दरवाजे को भी खोले। लेकिन अफसोस है कुरान पढ़ते तो है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। हाँ, कोई इंसान खड़ा होकर कहेगा मुहिब्बुल कादरी हम आलिम नहीं है, हम अरबी ज़बान नहीं आती है, हमारी फहम से दूर है कुरान का समझना, यानी हमारी समझ से मावरा है, हम कुरान समझने से आजिज है, काफिर है। मैं बताना ये चाहता हूँ नादान, तुमने अपने आप को इतना आजिज बना तो लिया, काफिर बना तो लिया। तुम मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, तेरे नबी ने तो ये कहा था तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। लेकिन तुमने उस फर्ज को हासिल क्यों नहीं किया, उस फर्ज पर अमल क्यों नहीं किया? तेरे पैगंबर पर जो सबसे पहली वही नाज़िल हुई थी उसका पैगाम भी यही था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ महबूब अपने पैदा करने वाले रब के नाम से पढ़िए। मतलब यह है इस्लाम पढ़ने की बात करता है, इस्लाम पढ़ाने की बात करता है, इस्लाम इल्म की बात करता है, इस्लाम तालीम की बात करता है, इस्लाम एजुकेशन की बात करता है, इस्लाम नॉलेज की बात करता है। याद रखो, अगर तुम मुसलमान है तो आज से याद करके कि हमें भी पढ़ना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपनी बच्चियों को भी दिन का इल्म सिखाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। और आप आदम की औलाद हो। अभी मुफ्ती साहब ने क्या फरमाया था कि हजरत आदम को रब ने जन्नत में पैदा किया। कहाँ पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। लेकिन हजरत आदम को जन्नत में बनाया, एक बात यह भी है कि फरिश्तों से सजदा करवाया। क्या करवाया? फरिश्तों से सजदा करवाया। जबकि कुरान में रब ने यह कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? जमीन पर अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। मौला जमीन पर बनाना चाहता था, लेकिन जन्नत में क्यों बनाया? जन्नत में क्यों बनाया? और जब जमीन पर बनाने की बात आई
तो फरिश्तों ने एतराज किया था, अपना अरीजा पेश किया था, मेरे परवरदिगार तू ऐसी कौम को जमीन में प्रणाली बनाएगा, जमीन पर जो फितना करे, फसाद करे, लड़ाई करे, मार करे, गारत गिरी करे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो, एक दूसरे की गीबत करे, चुगली करे, नफरतें परवान चढ़े, जमीन दागदार हो जाए, खून से आलूदा हो जाए, ऐसे मखलूक को तू जमीन पर अपना नाई बनाएगा। तो रब्बे कदीर ने फरमाया था, इन्नी आलमो मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, मैं क्यों पैदा करना चाहता हूँ, क्यों अपना नाई बनाना चाहता हूँ। फिर रब ने हजरत आदम को इल्म सिखाया, क्या सिखाया? इल्म की अहमियत बता रहा हूँ, इल्म की अहमियत अर्ज कर रहा हूँ। रब ने फरमाया वल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा के नाम सिखा दिए, तमाम चीजों के नाम सिखा दिए, इल्म सिखा दिए। और जब सिखा दिए तो फरिश्तों से फरमाया जरा तुम फला चीज का नाम बताओ, फला चीज का की हकीकत और माहियत बताओ। फरिश्तों ने कहा मौला हमारे इल्म में नहीं है, हम नहीं जानते हैं। फिर हजरत आदम से कहा गया, हजरत आदम ने बताना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। जब हजरत आदम ने बता दिया तो ये इत्मामे हुज्जत के तौर पर पेश किया और रब ने फरमा दिया कि तुमसे बड़े आलिम हजरत आदम है, हजरत आदम है, लिहाजा हजरत आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन फरिश्तों की जमात में रहने वाला एक तबका था जिसने सजदा नहीं किया, रहता था फरिश्तों के साथ लेकिन नाफरमान था खुदा का। अब यही रुक कर एक पैगाम दे दूं, आपके साथ भी बहुत से लोग रहते होंगे, आपके साथ भी जिंदगी गुजारते होंगे, लेकिन वो मकबूल नहीं मरदूद होंगे, मकबूल नहीं मरदूद होंगे। शैतान फरिश्तों के साथ रहकर मरदूद हो गया, मकबूल न हो सका और जन्नत से निकाल दिया गया। अब सुन्नियों के साथ रहने वालों, खुदा और रसूल की गुस्ताखी करने वालों, खैर मनाओ, वहाँ जन्नत में रहने वाला इनकार की वजह से निकाल दिया गया। तू जन्नत से बाहर है, तुझे जन्नत में कैसे दाखिला दिया जाएगा, तेरी गुंजाइश कैसे जन्नत में होगी, हरगिज़ नहीं हो सकती है। याद रखो, इल्म आदम की बुनियाद पर खिलाफत भी अता की जा रही है, विरासत भी अता की जा रही है, नियामत भी अता की जा रही है। इल्म आदम की बुनियाद पर आदम मकसूद मलाइका भी ठहर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे यही रुक कर मैं आपको पैगाम दे दूं। हजरत आदम से कहा गया मैं जमीन पर बनाना चाहता हूँ, कहा जमीन पर, लेकिन रब ने बनाया जन्नत में। मुफ्ती साहब किबला ने अभी फरमाया, आपने सुना, जन्नत में बनाया फिर दुनिया में भेजा। हिकमत क्या है? तो एक कायदा है, कुल्लो शैइन यरजो इला अस्लिही, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। कहाँ लौटती है? असल की तरफ लौटती है। पानी बहाओ तो नीचे के तरफ, तो नीचे के ओर पानी बहेगा। एक हवा में किसी ढेले को उछालो, बल्ले को गेंद को उछालो तो वो गेंद नीचे आ जाएगा। मतलब यह है जिसकी जो है जैसे कबीर होती है उधर ही वो चीज लौटने लगती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने जन्नत में बनाया, फिर दुनिया में भेजा, इसलिए जन्नत में बनाया ताकि हम और आप जो आदम की औलाद है, हमें एहसास हो कि हमारा असली घर जन्नत है। और जन्नत जाने के लिए हमें अच्छे अमाल करने चाहिए, अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए, खुदा की इबादत। नारे तकबीर, जोर से हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने इस्लाम। मौलाना कबीर रजा साहब जहां कहीं भी वो आ जाए, उन्होंने मुझसे कहा था 10 बजे आपको उठाऊंगा, हजरत 12 बजे तक आप तकरीर करेंगे। लेकिन अब वक्त में इस कदर गुंजाइश है कि मुझे अब जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। हुजूर शेख तरीकत की आमद हो रही है, खड़े हो गया हुजूर पीर तरीकत